کا جو ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اس کے ساتھ سید صاحب کی یہ تفسیر ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ تھا، اس چشمے سے پانی آتا تھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زمینوں کو، اپنے کھیتوں کو اس پانی کے ساتھ سیراب کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر کی جو زمین تھی وہ پہاڑ کے قریب تھی، اور جو دوسرے انصاری صحابی تھے ان کی زمین پہاڑ سے تھوڑی دور تھی۔ اب وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ پہلے میں اپنی زمین کو پانی لگاؤں گا، پھر بعد میں آپ اپنی زمین کو سیراب کرنا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں، چونکہ میری زمین قریب ہے تو پہلے میرا حق بنتا ہے، میں پہلے اپنی زمین کو سیراب کروں گا، آپ کا حق بعد میں ہے۔ اب دونوں کے درمیان اس بات پہ جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھا تو یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آئے، آ کے معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبیر کی زمین جو ہے، زبیر کا کھیت جو ہے، چونکہ وہ پہاڑ کے قریب ہے اس لیے زبیر کا حق پہلے ہے، زبیر پہلے پانی لگائے گا، انصاری کا حق بعد میں ہے۔ اور فرمایا زبیر پہلے تو اپنی زمین کو سیراب کر، بعد میں اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ جب یہ حضور نے فیصلہ کیا نا تو وہ جو دوسرا صحابی تھا، انصاری صحابی تھا، اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا ہاں ہاں چونکہ زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اسی لیے آپ نے زبیر کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ بات صحابی نے کی، جواب رب نے دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، خدا کی قسم اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک فیصلہ دی جان سے قبول نہ کر لیا۔ جسے سمجھ لگی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اللہ حضرت نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں، وہ ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ ایمان کی بھی جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس جگر کے اندر نہیں، جس دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، وہ دل صحرا سے بھی زیادہ ویران ہے۔ اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کے بغیر محبت کمپلیٹ نہیں ہوتی، محبت ناقص رہتی ہے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ایک ادا کو اپنایا جاتا ہے، محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار یار مزار، آقا کا پیار۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت ہے، آپ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تو پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اے میری بیٹی مجھے یہ بتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا ہے۔ یہ دو سوال کیے، حالانکہ یہ سوال کرنے کا موقع نہیں تھا، یہ سوال کرنے کا محل نہیں تھا، لیکن جب باپ نے پوچھا تو بیٹی کے چہرے پہ حیرانگی آ گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عائشہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے، فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میں نے تجھ سے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ ساری زندگی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں اپنے آقا کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرتا رہا ہوں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اس وقت بھی اپنے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا جاؤں۔ یہ محبت ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے، ہر ایک ادا کو۔ اور محبت کا ایک اور تقاضا بھی ہے، محبوب کی ہر ایک شے سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے،
महबूब के गांव से भी मोहब्बत होती है, महबूब के घर से भी मोहब्बत होती है, महबूब की हर एक शय से बंदे को प्यार होता है। अगर यकीन नहीं तो आइए मैं आपके सामने वाज़ेह करता हूँ। हुजूर के सहाबी हैं जिनका नाम सुमामा बिन अस्साल है। ये जब ईमान नहीं लाए थे उस वक़्त यमन के गवर्नर थे। सुमामा यमन का गवर्नर था। ये मदीना के करीब से गुज़र रहा था। जब मदीना के करीब से गुज़रा तो सहाबा इकराम के हत्थे चढ़ गया। सहाबा इकराम ने इसे पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले आए और ला के मस्जिद नबवी के पिलर के साथ बांध दिया। जब सहाबा ने इसे बांधा तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे आका देखते हैं सहाबा ने किसी बंदे को बांधा हुआ है। हुजूर देख के फरमाते हैं कि तेरा क्या हाल है, तेरा हाल कैसा है। जब हुजूर पूछते हैं तो मैं कुर्बान ना जाऊं उसके मुकद्दर पर जिसके हाल मेरे आका पूछ रहे हैं, कुर्बान ना जाऊं उस बंदे के मुकद्दर पर कि जिसका हाल हुजूर पूछ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया तेरा हाल कैसा है। सुमामा आगे से बोला, कहने लगा कि मैं बड़ा अमीर हूँ, अगर आपने मुझे पैसों के लिए पकड़ा है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे रिहा कर दें। दूसरी बात कही, कहा अगर आप लोग मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे तो मेरे खानदान वाले आपसे बदला ले लेंगे, मेरे कबीले वाले, मेरे घर वाले आपसे बदला ले लेंगे। तवज्जो है आप लोगों की। सुमामा ने तीसरी बात की, कहा कि अगर आप मुझे एहसान के तौर पे छोड़ देते हैं तो मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं बोलूँगा बल्कि आपके एहसान का बदला चुकाऊँगा। इसको थोड़ी कम कर दें भाई, आवाज़ की समझ लगे तमाम लोगों को। तीन बातें की सुमामा ने। पहली बात की कि अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो कत्ल कर दें, मेरे ख़ानदान वाले आपसे बदला ले लेंगे। दूसरी बात की, कहा अगर आप पैसे लेना चाहते हैं तो मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तीसरी बात की, कहा अगर आप एहसान के तौर पे मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। ये तीन बातें की। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ले गए। दूसरा दिन हुआ, हुजूर फिर आते हैं। हुजूर देखते हैं कि बंदा भूखा है, बंदे को तबलीग की भूख है। कभी तबलीग कुरान सुना के की जाती है, कभी तबलीग हदीस सुना के की जाती है, लेकिन कभी तबलीग मुस्कुरा के की जाती है। हुजूर मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, सुमामा की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं सुमामा तेरा हाल कैसा है। हुजूर जब पूछते हैं हाल तो सुमामा फिर तीन बातें कहता है कि अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो कत्ल कर दीजिए, मेरे ख़ानदान वाले बदला ले लेंगे। अगर आप पैसे लेना चाहते हैं तो मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं बड़ा मालदार हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सुमामा ने तीसरी बात कही कि अगर आप एहसान के तौर पे मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। हुजूर फिर मस्जिद के अंदर चले गए। तीसरा दिन हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम फिर आए, फरमाया सुमामा तेरा क्या हाल है। सुमामा ने फिर वही तीन बातें अर्ज़ की। सुमामा ने जब ये तीन बातें कहीं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा इसे छोड़ दो, इसे रिहा कर दो। जब सुमामा की रस्सियाँ खोली गई, सुमामा जब मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है, उसके कदम तो बाहर की तरफ जा रहे हैं लेकिन दिल अंदर की तरफ जा रहा है। अब सुमामा का दिल अंदर की तरफ जा रहा है। वो कहा ना किसी ने कि हथ कार वाले दिल यार वाले, हम दिल यार वाले जांदा पे है। वो किसी ने कहा ना, किसी शायर ने कहा कि अपना बना के छोड़ दिया, अपना बना के छोड़ दिया, ये आज़ादी है कि गुलामी है। कि हुजूर ने दिल जीत लिया, दिल जीतने के बाद फरमाया सुमामा को रिहा कर दो। सुमामा को रिहा किया गया। सुमामा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के साथ बड़ी जल्दी जल्दी चलता एक कुएं के पास जाता है और उतनी देर में मेरे आका मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। सुमामा कुएं के पास जाके गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद वापस मेरे आका की बारगाह में आता है। आके अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, अब मेरा जाने का दिल नहीं करता, अब दिल नहीं करता कि आपसे दूर जाऊं, अब मुझे कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा के सुमामा को अपने सीने से लगा लिया। अब सुमामा ने जब इस्लाम को कबूल नहीं किया था तो उस वक़्त भी तीन बातें की थी, और इस्लाम को कबूल कर लिया तो उसके बाद भी तीन बातें की थी। उस सुमामा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब तक मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, जब तक आपकी गुलामी में नहीं आया था, तो आपका चेहरा देखता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन या रसूल अल्लाह, इस्लाम को सीने से लगा लिया है, अब आपके चेहरे को देखता हूं तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। रिसालत
ने जब ये मंजर देखा तो आला हजरत ने कलम उठाया और कहा, लम यअति नज़ीरुक फ़ी नज़र, लम यअति नज़ीरुक फ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर से है तुझको शहीद दो सरा जाना, अना फ़ी अतशियों व सफ़ा का अतम, ए गैस व पाक है अब्र करम, लका बदरुन फ़िल वजहिल अजमल, खत हाला इमा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र फरो कुंडल, रहमत की बरन बरसा जाना, अल बहरु अला वल मौतु तगा, मन बेकस तूफा होश रुबा, मंजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। आला हज़रत फरमाते हैं रसूलुल्लाह का चेहरा इस तरह चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता था, और फरमाते हैं कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक आपके चेहरे के गिर्द इस तरह थी जिस तरह चांद के गिर्द बादल होते हैं। ये मंजर बयान करने के बाद फरमाते हैं कि जब चांद के गिर्द बादल होते हैं तो फिर बारिश भी होती है, फिर बारिश भी होती है। तो आका की बार में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह हम पर अपने करम की बारिश भी बरसा दीजिए। समामा ने दूसरी बात की, कहा, या रसूलल्लाह जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था, सीने से नहीं लगाया था, आपका शहर दुनिया के सारे शहरों में मुझे सबसे बुरा शहर लगता था। आपके शहर के साथ मुझे बड़ी नफ़रत थी, लेकिन खुदा की कसम मैंने इस्लाम कबूल किया है तो सारी कायनात के शहर अब अच्छे नहीं लगते, बल्कि आपका शहर ही अच्छा लगता है। पंजाबी के शहर ने कहा ना, जिन वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों इको सोना शहर मदीना है। कि जब इस्लाम को कबूल कर लिया तो फिर मदीने को देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तीसरी बात सुमामा ने की, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आपका दीन, आपका मज़हब जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था सारे दीनों में मुझे सबसे बुरा दीन लगता था, लेकिन या रसूल अल्लाह अब इस्लाम को सीने से लगा लिया है तो खुदा की कसम इसके जैसा कोई और दीन लगता ही नहीं। तो मैंने कहा जब बंदे के सीने में ईमान आता है तो फिर 3 चीज़ों की मोहब्बत लाजमी आती है। बंदे के सीने में फिर 3 चीज़ों की मोहब्बत लाजमन आती है। सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत आती है, फिर हुजूर के शहर मदीनातुल मुनव्वरा की मोहब्बत आती है, फिर इस्लाम की मोहब्बत सीने में आती है। अगर जिसके सीने में ईमान तो है, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इन 3 चीज़ों में से किसी एक की मोहब्बत नहीं है, तो वो अपने ईमान पे गौर करे, वो देखे कि उसका ईमान कामिल है कि नहीं है। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं जिनका नाम इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी मजलिस लगी हुई है, आप मजलिस के अंदर एक हदीस बयान कर रही हैं, तवज्जो है ज़रा, सुभान अल्लाह कहिए। इमाम अबू यूसुफ़ हदीस बयान कर रही हैं। हदीस क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे, प्यारे आका को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे। हमें किसी और बात पे फ़ख्र नहीं हज़रत, हमें किसी और बात पे फ़ख्र नहीं, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम उन घरों में पैदा हुए हैं जिन घरों के अंदर कद्दू को भी कद्दू शरीफ कहा जाता है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम उन घरों में पैदा हुए हैं जिन घरों के अंदर कद्दू को भी कद्दू शरीफ कहा जाता है। और इमाम अबू यूसुफ जब ये हदीस बयान कर रही हैं, एक बंदा खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है कि इमाम साहब मुझे तो कद्दू पसंद नहीं, मुझे तो कद्दू पसंद नहीं। बेअदबाना अंदाज के अंदर वो खड़ा हुआ। जब इमाम साहब ने उसका ये अंदाज देखा तो इमाम अबू यूसुफ खड़े होते हैं और जलाल के अंदर उसको जवाब देते हैं, फरमाते हैं जद्दिदिल ईमाना व इल्ला लअक़तुलन्नका, फरमाया अभी तौबा कर, कलमा दोबारा पढ़, वरना मैं तेरा सर उड़ा के रख दूंगा। ये होता है मोहब्बत का तकाजा कि महबूब की पसंदीदा चीज़ के अगर खिलाफ कोई उंगली भी उठा दे तो बंदा उस उंगली को उड़ा के रख दे, बंदा उस उंगली को काट के रख दे। ये महबूब के साथ मोहब्बत होती है। आज फ़लस्तीन के अंदर उन निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन बिलखते बच्चों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन बेसहारा औरतों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियों के अंदर मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। और साल के अंदर 23 मार्च वाले दिन हमें हमारे पास जो असला है, जो वेपन है, वो निकाल के हमें दिखा दिए जाते हैं। मैंने कहा ना आप हमें 23 मार्च को अब्दाली दिखाएं, ना शाहीन दिखाएं, ना गोरी दिखाएं, ना खालिद टैंक दिखाएं, ना F-16 दिखाएं, ना F-17 दिखाएं, इन्हें संभाल के रखें।
محسن ملت ڈاکٹر عبد القدیر نے ہمارے لیے ایٹم اس وجہ سے نہیں بنایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھا جائے گا، بلکہ انہوں نے ایٹم اس لیے بنایا تھا کہ اگر کفر اسلام کو للکارے گا تو پھر ہم انہیں جواب کبھی محمود غزنوی کی طرح دیں گے، کبھی ہم انہیں یوسف بن تاشفین کی طرح جواب دیں گے، کبھی صلاح الدین ایوبی کی طرح جواب دیں گے، کبھی خالد بن ولید کی طرح جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، محترم مقام اجتماع حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار رضوی صاحب تشریف لائے، میں آپ کو دل کی ٹھاکریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ جناب قاری صاحب تشریف لائے، میں نام سے واقف نہیں، اللہ اور اس کو رسول جانتا ہے، آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی دل کی ٹھاکریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے حکمرانوں کے سامنے اگر یہ بات پیش کر دی جائے نا کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، آپ فلسطین کی حمایت کرتے کیوں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو نقصان ہوگا۔ اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی۔ یار مر جاواں گے نا، اور کی ہوئے گا، اسی انہاں نالوں 4 دن ود جی لیں گے، اس تو علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں نا ہے۔ آخر موت ہے، اختتام بندے دا موت ہی ہے، مر تو جانا ہی ہے، حضور دے ناتے نہ مر جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔